الحمدللہ یونیورسل وزٹ کی جانب سے ہم آپ کو پیار بڑا سلام پیش کرتے ہیں۔ ناظرین، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم نے یونیورسل وزٹ پر ہرن مینار کے ریلیٹڈ یعنی کہ متعلق پہلا پارٹ یعنی کہ ایک ویڈیو اپلوڈ کر چکے ہیں، اور یہ پارٹ 2 ہے۔ اس میں بھی ہم وہی باتیں دہرائیں گے جو کہ پہلی ویڈیو کے اندر بتا چکے ہیں۔ یہ جنگل کی ویڈیو اور اس کے ساتھ بہتا پانی یعنی کہ چبوترا اور قلعے کی اور جہاں ہرن دفن ہے، اس میں ہم آپ کو 2 چیزیں دکھائیں گے، ایک جنگل اور ایک چبوترا قلعہ یعنی کہ جہاں ہرن دفن ہے، اس کے اوپر یہ ویڈیو مبنی ہے۔ جیسے کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ جہانگیر نے یہ مقبرہ بنایا، کس کے لیے بنایا؟ ہنس راج جو کہ اس کی ہرن تھی، اس کی محبت میں انہوں نے یہ مقبرہ بنایا۔ انہوں نے ایک مثال قائم کر دی ہمیشہ کے لیے، ایک جانور اور ایک انسان کے درمیان بھی محبت ہو سکتی ہے، انسان کو جانوروں کے ساتھ بھی محبت کرنی چاہیے۔ یہ انہوں نے بہت بہترین درس دیا، اور ہمیں بھی اگر آج کے دور میں ہم کمزور ہیں، مقبرہ نہیں بنا سکتے، تو مقصد صرف یہ ہے کہ ہمیں جانوروں کے حقوق ادا کرنے چاہیے۔ انہوں نے مقبرہ بنانے کا ان کا مقصد صرف یہ تھا کہ جانوروں کے ساتھ ہمیں محبت کرنی چاہیے، یہ ہمیں بہت کچھ دیتے ہیں، ہمیں کم از کم ان کے حقوق تو پورے کرنے چاہیے۔ اس لیے ناظرین، آپ نے یہ ویڈیو اینڈ تک دیکھنی ہے، پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ ہرن مینار کتنا خوبصورت ہے اور کتنا اچھا پیغام دیا گیا ہے۔ اور چھوٹی سی درخواست ہے، جتنے بھی ناظرین ہمیں دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، ہماری ویڈیو ان تک پہنچتی ہے، آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر لازمی کرنا ہے، کیونکہ اس میں بہت محنت ہوتی ہے۔ آپ ہمیں جتنا محنت سے لائک اور سبسکرائب کریں گے، ہماری اتنی کوشش ہوگی کہ آپ کے لیے نئی سے نئی ویڈیو بنائیں، تاکہ آپ کو گھر بیٹھے بیٹھے آسانی ہو سکے، آپ دیکھ سکیں۔ جو لوگ نہیں آ سکتے، خصوصاً ان کے لیے ہماری ویڈیو ہے کہ ہماری ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب کریں، تاکہ ہر آنے والی ویڈیو ان تک پہنچ سکے۔ آگے بھی ہم مزید اچھی سے اچھی ویڈیو آپ کے لیے لے کے آئیں گے۔ چلے چلتے ہیں اس ویڈیو کی جانب کہ یہ تمام جنگل آپ دیکھ سکتے ہیں، آگے جا کے آپ انشاءاللہ تعالیٰ پانی بھی دیکھیں گے اس ویڈیو میں۔ یہ جنگل بہت گھناؤنا، بہت وسیع جنگل ہے، جہاں درخت ہی درخت، کیونکہ اسی جنگل کے اندر جہانگیر بادشاہ شکار کیا کرتا تھا، اور یہیں پر اس کی ہنس راج کے ساتھ ملاقات بھی ہوئی۔ اس لیے یہ جنگل آدھا جنگل ہے اور آدھا قلعے پر مشتمل ہے۔ اس جنگل کے ساتھ بہت ہی یادیں وابستہ ہیں، کیونکہ بادشاہ اور ان کے ساتھی یہیں پر شکار کیا کرتے تھے، یعنی کہ ہنس راج اور بادشاہ کے درمیان پہلی ملاقات ہی یہ جنگل ہے۔ یہ جنگل آپ نے تو دیکھ لیا، اب آگے جا کر ہم آپ کو وہ پانی والا قلعہ جو پانی کے اندر موجود ہے وہ بھی دکھائیں گے۔ ویڈیو کو آپ نے اینڈ تک لازمی دیکھنا ہے۔
जी अब हम उस झील पे खड़े हैं। ये मेरे पीछे आप झील देख सकते हैं। ये उस वक़्त के बादशाह जहांगीर ने अपनी बहुत ही प्यारी हिरन मंसराज, उस हिरन का नाम था। जब वो यहाँ से दुनिया फ़ानी से कूच कर गई, उसकी याद में ये बादशाह सलामत ने झील बनाई थी और इसमें एक बारादरी भी बनाई थी। वो पीछे आप देख सकते हैं। ये सारी डिटेल मैंने आपको अपनी इसी वीडियो में बताई हुई है। आपने ये सारी वीडियो मुकम्मल तौर पर देखनी है ताकि आपको इसकी हिस्ट्री मुकम्मल तौर पर जान सकें। आप वीडियो को मिस मत कीजिएगा, एंड तक देखिएगा और हमें कमेंट्स में लाजमी बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। हमें कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। चलें वीडियो की तरफ चलते हैं और बाद में मिलते हैं आपकी तरफ। जहांगीर बादशाह ने अपने हिरन मंसराज के मरने के बाद एक यादगार मीनार तमीर करवाया ताकि उसके पालतू और अजीज हिरन की याद हमेशा कायम रहे और तारीख में इस हिरन को एक ख़ास मुकाम हासिल हो सके। बादशाह तो बहुत बड़े बड़े होते थे, इनकी राया को रोटी मिले या ना मिले, पर ये अपने मरने वालों के लिए बहुत बड़े मकबरे बना कर जाया करते थे। और इन्होंने एक मीनार बनाया था जिसकी बुलंदी तकरीबन 100 फुट थी, जबकि इसी के सामने एक झील भी बनाई गई थी। ये झील आप देख सकते हैं, वीडियो को आपको हमारी वीडियो में नज़र आ सकती है। और इसी झील के बिल्कुल सामने एक बारादरी भी बनाई गई थी। और सामने आप बारादरी देख सकते हैं जो बनाई गई थी। इसके चारों तरफ हाथियों के पानी पीने की जगह थी। ये आप जगह देख सकते हैं हाथियों के चारों तरफ। ये बहुत बड़ी जगह है हाथियों के पानी पीने की, जबकि इधर इंसानों के नहाने की जगह और मुहाफ़िज़ों के ठहरने की जगह भी बनाई गई थी। इस मीनार के सामने बनी हुई झील के किनारे बैठकर इस झील को कई लम्हों तक बादशाह जहांगीर इसे कई घंटों तक गौर से देखता रहा। शिकार की गर्ज से आया हुआ इसके साथ हज़ारों अफराद का लश्कर, हाथी और घोड़े झील से पानी पीते रहे। सैकड़ों कनीज़ें बारादरी के रास्ते खड़ी बादशाह और इसके साथियों पर फूल बरसाती रही। पंजाब के हुक्मरान ने बादशाह की हिफाजत और आराम सुकून के लिए खुसूसी इंतज़ाम कर रखे थे। बादशाह अपने महबूब यानी हिरन, जिसका नाम मंसराज था, उसकी कब्र पर खड़ा। जंगल के जानवर और परिंदे सब छुप गए। उनके लिए तो ये हलाल कब्र से कम नहीं थी। कल जब बादशाह शिकार पर निकलेगा तो पता नहीं निकलते परिंदे और जानवरों की जान चली जाएगी। लेकिन जो भी ये मीनार मुग़लों की अज़मत की निशानी, सियाहत की आमदन का ज़रिया और हम जैसों की तफरीह गाह है, जो हम अपने बच्चों को यहाँ लाकर अपने माजी की याद ताज़ा कर सकते हैं। लेकिन यहाँ अगर बच्चे अपने बड़ों से सवाल करें कि ये जगह इतनी गंदी क्यों है, इसके कुछ हिस्से बंद क्यों है, इसकी मरम्मत क्यों नहीं होती, ये जगह ठेकेदारों के हवाले क्यों की गई, इस मकाम इमारत के उस दरख्तों पर लोगों ने अपने नाम लिख कर क्या करना है, ये सवाल का मैं आपको जवाब देता चला जाऊं कि यहाँ की इंतज़ामिया को ये ठेका क्यों दिया गया, यहाँ इमारतें इतनी गंदी और पानी इतना गंदा क्यों है। ये पानी इसीलिए इतना गंदा है कि यहाँ पर बाहर से जो नालों का पानी है वो सारा इधर आके जमा हो जाता है, क्योंकि ये साफ़ पानी नहीं है, नहाने के काबिल पानी नहीं है। और इधर की इमारत जो ठेकेदारों को इधर का ठेका मिला है, इंतज़ामिया बेबसी है। क्योंकि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी यही बताया था कि इंतज़ामिया की बेबसी है, क्योंकि इधर इतनी आवाम नहीं आती जितनी आनी चाहिए। क्योंकि ये हिरन मीनार बादशाह के दौर का बना हुआ है, उसने ये सारा इंतज़ाम अपने राया के लिए किया था, मगर अब की इंतज़ामिया ने इसे बिल्कुल मुकम्मल तौर पर तबाह व बर्बाद कर दिया है। ये सवाल का मैंने जवाब आपको दे दिया है। अगर आप भी कोई सवाल इसके मुतालिक करना चाहते हैं तो यार आप हमें इन बॉक्स में लाजमी बताएं, कमेंट्स में लाजमी करें। और एंड पे आप हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा।
और देख ली होगी। हमें यकीन है कि आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी और आपने इंजॉय किया होगा। और मैं ये कह सकता हूँ आपको कि यार आपने कमेंट्स में हमें बताया होगा, क्योंकि आपके कमेंट्स बहुत आ रहे हैं हमारे पास और आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी है। आपने हमारी हौसला अफजाई की। हम मज़ीद इस तरह की बेहतर वीडियो आपके लिए और मज़ीद लेकर आएंगे। बहुत शुक्रिया।